کہ وفاق بیہیو نہیں کرتا. ٹھیک ہے, جہاں پہ بات رہی ہے آٹے کی, ہم نے امیڈیٹلی اپنی ریلیزز زیادہ کی, اور جو قیمتیں تھی جو وہاں پہ تقریباً 3500 تک چڑھ گئی تھی, وہ دوبارہ کوئی 2200-2300 تک نیچے آ گئی. 2200-2300 کے لیول پہ بھی جس لیول پہ ہم نے چھوڑی تھی اس سے تو 9 مہینے میں ڈبل ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں وہ مہنگائی مکاؤ مارچ جو تھا وہ ایکچولی مہنگائی لاؤ مارچ تھا, اور اس مہنگائی لاؤ مارچ کی 9 مہینے جو ہے وہ پورے پاکستان جو ہے وہ قیمت دے رہا ہے. لیکن یہ ابھی آگے $4 ارب سے کم ذخائر ہونے کا مقصد جو ہے وہ مطلب کوئی سمجھ سکتا ہے؟ یہ جو آپ نے گفتگو کی ہے خاص طور پہ تیمور سلیم بلیال صاحب نے اور مزمل نے, آپ کے کنسرن بڑے جنرل ہیں سر, اس میں کوئی شک نہیں, بڑے جنرل کنسرن ہے سر. مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, ادروائز مجھے برا نہیں لگ رہا, میں ریپیٹیشن کے خلاف تھا. نہیں بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کے بڑے جنرل کنسرن ہیں, جس طرح ظاہر نے بھی ابھی بات کی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خزانے میں یہ پوزیشن ہے, اور کائنڈلی یہ بتائیے گا اگر آپ کے تمام جو کنسرنس ہیں ان کو دور کرنا ہے تو اس کا فائنینشیل امپیکٹ کیا ہوگا؟ جی بی کا 20 سے 30 ارب روپے پہ 14 ہے نا سر, کس کا؟ آپ نے 6 تو ملا آپ کو, کس چیز کا؟ 20 آپ کہہ رہے ہیں 20 میں سے نہیں دیکھیں, ہمارا ایک ہے ریکرنٹ ہے, ایک اے ڈی پی ہے اور ایک پی ایس ڈی پی ہے, ٹھیک ہو گیا, اور ایک پھر ویٹ کی سبسڈی ہے. اب ہمارا جو ریکرنٹ میں انہوں نے 11-12 ارب روپے دینے, اے ڈی پی میں آپ یہ سمجھیں کہ 15 ارب, لیکن اس کے ہم ڈسکشن کے لیے تیار ہیں. ہمیں اگر 15-20 ارب روپے بھی اسپریڈ کر کے ریکرنٹ میں اور اس پہ مل جاتے ہیں, ہمارے ایشوز سالو ہو جاتے ہیں. ہم ڈالر نہیں مانگ رہے, اور پھر جب میرے سامنے ادھر ایک 1.4 ٹریلین کا کسی اور جگہ پہ مل رہا ہے, آپ یاد رکھیے گا کہ ہم این ایف سی میں نہیں ہیں, ہم این ایف سی میں نہیں. ہم لاسٹ ٹائم مرجر کے اوپر آئینی اس کے کیا کہتے ہیں صوبے کے آئینی اخلاق پہ جا رہے تھے, تو اس وقت جب ہم نے اپنی کیلکولیشن کی, اور مجھے یقین نہیں ہے, میں نے پھر اپنے آفیسرز کو دوبارہ کہا, میں نے کہا فائنانس ڈویژن پہ جائیں اور چیک کریں, تو ہمارا جو شیئر تھا, مطلب 2 قسم کے ادھر فارمولے تھے, تو کہ اگر اس ایک پہ 160 بلین تھا, ایک پہ 149 کے 140 بلین آ رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے ہمیں کتنا مل رہا ہے؟ ہمیں 47 بلین ریکرنٹ میں اور اے ڈی پی میں 18 بلین, تو 47 اور 18 بلین آپ ایڈ کر لیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک صوبہ جس کو آلریڈی 100 بلین آپ کم دے رہے ہیں, اس کے بعد وہ صرف اور صرف تنخواہیں اور اس کا رننگ ایکسپنس مانگ رہا ہے. ہم یہ نہیں مانگ رہے کہ ہمیں 2 ارب روپے دے دو ہم فوراً کا ٹرپ کریں, ہم صرف رننگ ایکسپنس مانگ رہے ہیں. اور گندم جب 6 سال پہلے آپ 14 لاکھ بوری پہ فوڈ کا کرائسس تھا, تو ہمیں کیسے وفاق کہہ سکتی ہے کہ ہم 9 لاکھ بوریوں پہ کلوز کر رہے ہیں؟ میں کیسے سنبھالوں گا جی بی میں؟ یہ ایک اسپیشل ایریا ہے. میں آپ کو جواب دے دوں, نہیں, ٹوٹل امپیکٹ جی بی کا 15 سے 20 ارب ہے. 7,450 ارب روپے میں سے 7,300 ارب روپے کا ایف بی آر کا نیا تخمینہ ہے, یعنی 150 ارب روپے یہ کم ایف بی آر کہہ رہا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 7,150 ارب سے اوپر ہو جائے تو آپ جو آپ سزا دیں گے میں لینے کے لیے تیار ہوں. پہلی بات, 1 منٹ سن لیں, اس وقت ملک میں مہنگائی جو ادارے شماریات کے حساب سے 25% ہے. آپ نے 6 مہینے میں ٹیکس جمع کیا 16.5%, یعنی کہ آپ نے مہنگائی سے بھی 10% کم ٹیکس کلیکٹ کیا. دوسری بات آپ نے یہ بولی کہ یہ پیسے کہاں سے ان کو ملیں گے. جب ہم حکومت چھوڑ کے گئے تھے تو 93% بجلی کے بل کی ریکوری تھی, اور پورے سال میں 125 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ تک گردشی کرنا. انہوں نے جو ہے بجلی کی ریکوری 93% سے 82% پہ آ گئے. مہینے کا 125 ارب روپے بجلی کا نقصان, جس کی وجہ سے اب آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں 7.5 روپے یونٹ بجلی کا بڑھاؤ. بجلی کی جو تیل کی لاگت نیچے آئی ہے پچھلے 6 مہینے میں, لیکن آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ اب بجلی کی لاگت بڑھاؤ, کیونکہ آپ 20% بجلی کے بل ہی واپس ریکور نہیں کر رہے. اور اس کے بعد جب وہ خسارہ بڑھ رہا ہے تو ان جو چھوٹے صوبے ہیں, اور اب تو خیر میں پنجاب کی بات کروں گا کیونکہ ان کی حکومت نہیں ہے, تو پیسے کٹ کر رہے ہیں. یہ ان کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے ملک میں پیسے تھے, ان کی جو نااہلی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. آپ سی ایم صاحب یہ بتا دیں کہ 9 ماہ ہو گئے وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت کے جانے کے بعد, کتنی بار آپ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ کیا اور جی بی کے جو ایشوز ہیں اس پر ڈسکس کرنے کے لیے؟ سی ایم صاحب اس کے ساتھ یہ سوال دے دیں, یہ تصویر آپ کو نظر آ رہا ہوگا, گندم کے اوپر ایک بچے نے پوسٹ کیا تو آپ کی گورنمنٹ جی بی کے اندر شگر میں اس کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہے.
क्या पोस्ट नहीं, मुझे नहीं पता कब की बात है ये अभी के एहतजाज की ये फुटेज आप देख, तो ये मैं देख लेता नंबर हूँ दो, लेकिन ये आप हमारी बात को ही स्ट्रेंथन कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि गंदम के इशू में जिस तरह आप लोग बोल रहे हैं, वहां पर खराब गंदम पहुंचा था, अब तक अवाम उसको खा रहे हैं, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी कमेटी बनी, अगर बनी है तो उसकी रिपोर्ट कहाँ पर? अच्छा ठीक है, मैं अब सवाल के जवाब देना स्टार्ट करूँ। देखें, हम जब जून में हमने ट्राई किया वफाक के साथ, तो हमें बताया गया कि आप PND डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बैठे। हमारा उस वक्त ये कश्मीर मिनिस्ट्री की हमारी वो है वजारत है। हम कायरा साहब के साथ 2 दफ़ा मिले। कायरा साहब जिस वक्त गिलगित में आए तो कायरा साहब से हमने कोशिश की कि हमने घर में, मैंने कायरा साहब को सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर, हमने उनको होस्ट किया, घर में खाना किया। इधर वफाकी वजीर थे हमारे कश्मीर मिनिस्ट्री के। उस वक्त हमारी कमिटमेंट्स हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर में, जिसमें एहसन इकबाल भी था और मुफ्ता इस्माइल साहब भी थे उस वक्त। वो कमिटमेंट्स इन्होंने फुलफिल नहीं की। और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ के, ये जो आप का जो है कि शहबाज शरीफ साहब जब जिस वक्त GB में आए तो उस वक्त आप क्यों नहीं मिले, ये एक अपोजिशन का क्रिटिसिज्म है। शहबाज शरीफ साहब 2 दफ़ा है GB में, 1 दफ़ा है बादशाह डैम में। बादशाह डैम में हमें नहीं पता, न सूबाई हुकूमत को बताया गया। रात को 2 बजे मुझे पता चलता है कि सुबह 7 बजे शहबाज शरीफ साहब उधर जा रहे हैं बादशाह डैम में। मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ था, ठीक हो, और मुझे भी किसी और सोर्स से पता चलता। अब आप मुझे बताएं, 5 घंटे में मेरे पास तो जहाज भी नहीं, मैं कहां से उधर पहुंच जाऊं, हमारा तो ट्रेवल टाइम ही इतना। दूसरी दफा भी जब वो फ्लड पे आ रहे थे तो हमें इतला नहीं थी, और उसके ऊपर जो हमारी कमिटमेंट्स थी वो भी पूरा नहीं। तो हमने उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया, हम नहीं मिले क्योंकि हमारे साथ चीजें भी नहीं। अब मैं जेनेवा की मिसाल दूं कि जिस तरह की ट्रीटमेंट, और ये चीज मैं बताना नहीं चाह रहा था, जेनेवा में तमाम सूबों को लेके जाया गया और ब्रीफिंग रखी एहसन इकबाल साहब में, जिसने मेरा सेक्रेटरी भी उसमें बैठा हुआ था। तो सबकी ब्रीफिंग, सब सूबों की प्रेजेंटेशंस हुई। तो स्पेशली GB को कहा जाता है कि न तुम प्रेजेंटेशन दोगे, न तुम बताओगे कि तुम मतलब इधर GB से तुम्हारा ताल्लुक है और GB आया हुआ है, और न तुमने नाम लेना, न तुमने कोई मीटिंग्स करनी। वो क्यों है, किससे डर है, किससे खौफ है? मतलब ये को खौफ है कि ये बताते हुए कि ये GB हमारा खित्ता, या फिर ये कोई जाती इनकी दुश्मनी है। मुझे इतला मिली, मैंने कहा हम नहीं जाते। उन्होंने कहा कोई सेक्रेटरी को भेज दें। मैंने कहा मैं सिर्फ खर्चे करने के लिए सेक्रेटरी को भेज दूं। तो हमारी जो माने खेज मीटिंग्स जिन इधर हुई, इन्होंने पूरा नहीं किया। हम आज भी शहबाज शरीफ से बैठने के लिए तैयार। हमने पिछली दफा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे 3 घंटे बाद ही शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सूबों का नाम तक नहीं लिया, लेकिन वहां का ये इल्जाम गलत है। हम आज भी बैठने के लिए तैयार हैं, हमारे मसले हल कर दें, या हमसे ना मिलें, अगर हमारी शक्लें पसंद नहीं, हमें पैसे दे दें। 2 सूबाई हुकूमतों में PTI जो है अपनी हुकूमत खत्म कर चुकी है। बात हो रही है गिरफ्तारियों की, तो PTI के साथ आगे चल के कोई इस किस्म के हालात क्रिएट होते हैं तो फिर PTI का क्या रद्द-ए-अमल होता है? क्यों, किस चीज की गिरफ्तारी? ये कुछ मतलब मीडिया के ऊपर बातें चल रही हैं। देखें, मेरा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही था कि, और जो ब्रीफिंग्स रखने का, कि हालात क्या हैं, क्राइसिस क्या है और इनके इरादे क्या हैं। कोई नया केस खोलना, कोई नई ऑडियो लाना, कोई और चीज बनाना, कोई गिरफ्तारी करना। और हम इनको, मैं बहैसियत हुकूमत चीफ मिनिस्टर इनको बता रहा हूं कि अल्लाह का वास्ता है, आंखें खोलें, हालात बहुत खराब है। गिलगित बल्तिस्तान में अगले आने वाले महीनों में मैं धरने नहीं रोक सकता। एक धरना हुआ, इनको लग पता गया, और जिस वक्त GB से पूरे लोग बाहर निकलेंगे उस वक्त ये ना कहें कि ये चीफ मिनिस्टर ने किया। और ये जिस वक्त, और मुझे इनके ऊपर इनकी लायकी या इनकी कॉम्पिटेंस पे कोई शक नहीं, ये इन्होंने यही हरकतें करनी है। इस मुल्क को मजीद खराब करने के लिए, सिचुएशन को मजीद बिगाड़ने के लिए इन्होंने यही हरकतें करनी है। इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। राब्ते भी है मुख्तलिफ वफाकी हुकूमत के साथ भी। आपको बुनियादी वजह क्या लगती है, आपके फंड रोके क्यों जा रहे हैं? उनकी असल वजूहात की तरफ आए। जी, तैमूर साहब का, दोनों सूबों, मैं आपको सिंपल करके बता देता हूं इसका। ये इसलिए रोक रहे हैं कि चूंकि ये खुद फाइनेंशियली मैनेज नहीं कर सकते, इनको IMF को डेफिसिट कम दिखाना पड़ता है, कुछ और नहीं होता। तो जहां जहां पे इनकी डिस्क्रेशन चलती है वहां पे रोक देते हैं। यही चीज GB के साथ हुई, यही चीज AJK के साथ हुई, यही चीज कबायली अजला के साथ फंडिंग में हुई, यही चीज ये लोग करते हैं सूबों के NFC के शेयर में चुपके से कटौती करके, वो पैसे अपने पास रख के। इसी वजह से ये लोग जो है वो सूबे का IMF को सरप्लस दिखाते। मसला ये है कि अभी इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही।
इन सब चीजों के बावजूद IMF इनकी बात नहीं मान रहा, हमारे दोस्त ममालिक इनकी बात नहीं मान रहे। देखिए, पहली बार सऊदी अरेबिया के फाइनेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर ने डेवॉस में कहा कि हम अभी ये जो फ्री लंचेज हैं कि मुफ्त के लोगों के पास पैसे रख के ये हम करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि पिछले ये 9 महीनों में जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी रही है, जहां पे मिफ्ता इस्माइल को इस्तेमाल किया एक डील साइन करने के लिए और उसके बाद उसको बाहर फेंका और फिर उसको जोकर का, और जो उसका रिप्लेसमेंट है उससे कोई काम जो है वो हो नहीं रहा। तो ये क्राइसिस हम भुगत रहे। जो लोग सफर कर रहे हैं वो पाकिस्तान के वो सबसे पसमानदा इलाकों में है जिनके पास क्राइसिस होता है। और एक बात मैं कहूं, एक बड़ा अच्छा सवाल हुआ था कि इनकी कॉस्ट क्या है। 2 कॉस्ट्स इनको ना सॉल्व करने की है। पहले तो मेरे ख्याल में, मैं फिगर नहीं बताता, लेकिन मेरे ख्याल में 100 अरब रुपए के अंदर, और उसको डिवाइड कर दे मंथली, क्योंकि किसी को 100 अरब रुपए महीने में तो नहीं चाहिए ना, 5 से 10 अरब रुपए माहवार में ये सारे मसले जो है वो हल हो सकते हैं। विल चाहिए। दूसरी चीज, और दूसरी चीज एक क्लोज करें। एक सिर्फ बात लास्ट बात करते हैं सुनने सिर्फ ये जो 1 महीने के लिए एक बात सुने। हाँ, वही उसी में मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, उसी पे बात कर रहा हूँ। ये जो मिफ्ता इस्माइल की इन्होंने बात की तैमूर भाई ने, हमने एक शैडो बजट दिया था जैसे इन्होंने बजट दिया था, और हमने उस वक्त कहा था ये गलत बजट है। 4000 अरब रुपए का इन्होंने जो है सूद की अदायगी का बजट रखा था, जो अब 5000 अरब हो गया, यानी 1000 अरब रुपए का गलत एस्टिमेट था। तो वो जो हजारों अरब रुपए, क्योंकि सूद तो अदा करना ही है, तो उसकी जो कटौतियां हैं वो सारी की सारे सूदों पे उतर गई, क्योंकि यहां पे डिस्क्रिशन, वहां पे डिस्क्रिशन नहीं चलता, यहां पे डिस्क्रिशन चल के। तो बजट ही पहले दिन में इन्होंने बनाया था 11.5% महंगाई पे, जो 25% महंगाई, इन्होंने 5% ग्रोथ में बनाया था, जो 5% मंथली ग्रोथ। सर ये बताइएगा कि कल ना अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, आप 2/3 मेजोरिटी के साथ वापस आते हैं, वी आर हेडिंग टुवर्ड अ टेक्निकल डिफॉल्ट, तो ये बताइएगा कि आप पहले क्या इकोनॉमिक स्टेप्स लेंगे जिनसे हमारे पास। देखिए, हमने 2018-19 में ऐसे ही पाकिस्तान लिया था, और ना एक दिन इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई थी, ना किसी के पैसे काटे थे, और हम इस वक्त इकोनॉमिक प्लान बना रहे हैं, और हमारे पास 5 मेजर पॉलिसी एक्शंस हमने जो है तय करने हैं, और हम इंशाल्लाह आते ही। ठीक है, थैंक यू।